significance of the Himalayas? There are so many significance. Can you tell me one or two points related to socio-economic significance of Himalayas? Anyone? Sources of rivers. So what is the economic significance or social significance of it? Tourism. Tourism. Yes. Giving HEPs. Ethnic tribal groups. Ethnic groups are there. Various ethnic groups having the unique culture. हाँ, और क्या बोलो? Pilgrimage centers. Pilgrimage center. Another cultural aspect is that in Himalaya there are various pilgrimage center. Okay, there are so many temple, so many monasteries are also there, Buddhist monasteries. Okay, Buddhist pilgrimage center. barriers from Chinese invasions, geostrategic importance. Geostrategic, Geostrategical. because the Himalayas act as a natural fortress, border है वो, ये एक physical barrier का काम करता है ना? Yes. It act as a boundary, it act as a physical barrier. So for safety point of view, and we share the border with different Himalayas, okay, traveling with various states, various country. So geostrategic importance है इसका, ठीक है ना, because it is a natural fortress. और क्या है बताओ? Sir, source of rivers. Socio-economic में ही है रखी हुई है. या जियो स्ट्रैटेजिक भी है, सोशियो इकोनॉमिक भी है, यहाँ लिखा है सोर्स ऑफ रिवर. It is a source of river, geostrategically important because river again is a bone of contention between two countries. Say for example, Pakistan is also making a dam on Jhelum, and the name of that project is the Neelam project, and India is also developing the hydroelectric power plant they had set up on Jhelum. Okay, so we have a controversy over the river project. Okay, we have controversy with Bangladesh on the Tista because we are creating a dam on Tista. Tista का वाटर भारत से होके बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश कहते हैं आप पानी रोक लेते हैं डैम बनाकर. So the river is a bone of contention between two countries geostrategically, and Himalaya is a source of that river. So geostrategic importance of Himalaya for us, keeping in mind this point also. Okay, ये perennial river के source हैं. So apart from that, we are also developing the river interlinking projects, and not only within the India but also with the neighboring states. हम एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना. तो वहाँ से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया चले जाएंगे, यानी इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र से होते हुए बांग्लादेश होते हुए तो मलेशिया इंडोनेशिया पहुँच जाओगे. वी आर डेवलपिंग सच अ प्रोजेक्ट्स. ओके, सो द रिवर इज ऑल्सो व्हाट अ sources through which we navigate. It is a connecting link between more than two states. So Himalayas are the source of that rivers which are connecting link between more than two states. So geostrategically again the Himalayan river is very important for us. Some Yeah, minerals. Yeah, mineral wealth is there. So many minerals. I had already discussed about the minerals, and not only the metallic, non-metallic, but also the fossil fuels are there. Fossil fuels are there. Coal and petroleum deposits are also present in this region. No. Apart from that, precious stones are there. जैसे जम्मू कश्मीर में नीलम वैली में क्या मिलते हैं? नीलम stone, which is very costly. So the Himalaya is source of precious stones also. That is also we extract from the mining activity. Okay. So again, now geological abode of various type of rocks, sedimentary, metamorphic, igneous.
and these rocks are the mineral wealth. So geologically again, the Himalayas gives us idea how the tertiary fold mountain built. So we can compare the formation of the other mountain of the world during the same period. We can compare that. So to understand, to reveal the mystery of the origin of the mountains, we can what? Observe the origin of the Himalayas. So Himalayas also unravel the mystery of geology, geological past. Okay, what we find that there are so many thrust and fault regions are there. To understand the seismic activity, Himalaya is a very good observation center. We can observe the tectonic events by observing the Himalayan belt, because there are so many, because that is on the plate margin. Here two continental plates are what? Interacting with each other. Due to that interaction of Indian plate and Eurasian plate, the Himalaya belt. So to unravel the mystery of the tectonism, okay, we also consider Himalaya is a good center of learning, and lots of researchers and students are learning the tectonic or seismic events along the Himalayan belt, right from Pakistan region to the Myanmar region. Getting my point? So we have lots of significances. If you go through that, what we observe, there is a broad significance of that, and apart from that, what is again very very important for that, और क्या है यहाँ पे आपने देखा, ऑर्चर्ड फार्मिंग भी करते हैं, हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं, लंबरिंग एक्टिविटी भी करते हैं. देयर आर सो मेनी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड. जैसे सहारनपुर रीजन में जाओगे, भारत की पेपर इंडस्ट्री है. क्यों वहाँ लगाई गई? क्योंकि आसपास में हमें क्या मिलेंगे? लंबरिंग एक्टिविटीज होगी. तो देयर इज अ सप्लाई ऑफ पल्प. पेपर के लिए पल्प सप्लाई होनी चाहिए, वो यहाँ मिलेगा. सॉफ्ट ट्रीज, यस, फर्नीचर के लिए आपको चाहिए नहीं, और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, दिया सलाई माचिस के लिए भी चाहिए, और आपको बल्ला बनाने के लिए भी विलोज ट्रीज चाहिए. So all these trees are there. So biological diversity we can use, and the unique wildlife is there. The pandas are located in which region? In the Sikkim region and in the China region, in the Himalayan belt. In the Kaziranga National Park, one-horned rhino is present in that region only. Okay. The snow leopard in the Jammu Kashmir region, in Himachal Pradesh and Uttarakhand region, we find a snow leopard. That is the unique variety. Okay. And the variety of goat, okay, the variety of goat like Chiru, we observe in Himalayan belt, okay, through which we also make the woolen cloths. Okay, so what we observe, that unique wildlife in that region, and that is the certain region. अभी आपको पता है हिमालयन बेल्ट में, आप बताओ बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं? नंदा देवी क्या बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी क्या बायोस्फीयर रिजर्व है? डू यू हैव आइडिया अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? लुक एट एटलस. एटलस देखो, बताओ मुझे, व्हाट आर द बायोस्फीयर रिजर्व? भूल गए आप. इकोलॉजी इन्वायरमेंट आई हैड डिस्कस द बायोस्फीयर रिजर्व. हाँ, no. How many biosphere reserve in India? Or is there any biosphere reserve which is lies in Himalayan belt or declared by the government? Okay. And how many national parks are there in Himalayan belt? How many tiger reserves are there? What is the first tiger reserve of India? Jim Corbett. Jim Corbett. Where it lies? Of course in Himalayan region, in Uttarakhand Kumaon belt. Okay, जो अगर आप regionally बात करेंगे. So once you started looking at, what you find that there are so many. What is the great significance of Himalayas? Okay. Some natural passes are there which links the people of two different culture in this region. Okay. तो वो पासेस भी आपको याद रखना है. जियो स्ट्रैटेजिकली ट्रांसपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बनिहाल, पीरपंजल, ओके, रोहतांग, जोजिला, बुर्जिल, ओके, शिपकिला, नीति, जेलेपला, नाथुला, ओके, all these passes are Bombdila,
All these passes are very, very important. Geostrategic importance है. Nathula connect China, Tibetan region to the Indian region through Chumbi Valley in Sikkim. Okay, geostrategic importance है. Sipkila is again connecting Tibet region, autonomous region of China, to the Indian region. Bomdila in Arunachal Pradesh, again strategically very important. Okay, Jelepla. Okay, Lipu Lake at the Uttarakhand and Nepal border is again geostrategically very important pass which is located in that region. So there are so many natural passes having the geostrategic importance, okay, in this belt, in this Himalayan belt, because it connect India with the other countries, okay, through which you can cross, because tough terrain है, snowfall होता है, बंद हो जाते हैं रास्ते, इतना आसान नहीं होता है कि आप जा पाए. तो हमने उस दर्रों का, उस टनल का, उस नेचुरल पासेस का इस्तेमाल किया है और वहाँ से रोड कनेक्टिविटी बनाई है और उसके थ्रू हम तिब्बत में एंटर करते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल व्हेन यू ट्राई टू राइट फॉर द डिफेंस पर्पसेस, सिक्योरिटी, as well as Himalaya is a physical barrier to the cold waves, Siberian cold waves. साइबेरिया रीजन से जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो अगर हिमालय नहीं होता तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है इंडिया में, पर ऐसा नहीं होता, वो कोल्ड वेव से भी बचाती है. ठीक है ना. हिमालय एक्ट एज अ बैरियर टू द मॉनसून विंड. व्हाई द इंडिया रिसीव द प्रेसिपिटेशन? बिकॉज ऑफ द हिमालयन रीजन. अदरवाइज in the northern part, eastern part, northeastern part of India won't receives the adequate rainfall. Himalaya act as a physical barrier. Tibet play a very significant role in the monsoon. Himalaya having the great role in the monsoon. Getting my point? So Himalaya is also very, very important for the to determine the climate of India. It's a very important physical barrier. Okay. So you should keep in mind all these factor. तो आपको यहाँ क्लाइमेटिक फैक्टर भी ऐड कर लेना चाहिए. ठीक है. So if you try to explore the ideas, you can get several importance of the great importance of the Himalaya for us. Okay. So Himalaya play not only a very significant role for the sustainable development of Indian economy, but also geostrategically it is very, very important. Okay. तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जियोस्ट्रैटेजिकली भी ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एथनिक ग्रुप्स आर लिविंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट. गड्डीज, बकरवाल, गुज्जर, भूटिया, ओके, भूटिया ट्राइब, okay, Naga tribe, Mani tribe, Mizo tribe, Garo, Khasi, Jaintia, in the foothills of Himalayas they are living. Okay, not exactly on the Himalayan river, but there are lots of ethnic groups are living in a different part of India's. Okay, Gurkhas in Himalayan region. So you cannot forget the contribution of all these ethnic groups. Okay. तो ये हो गया यहाँ पे. This is quite enough for the Himalayas. We have discussed every dimension. Now the next topic I am going to discuss is the soil of India. Okay, so what is the next topic is the soil. Let's look at. I had already discussed the soil genesis process, so I am not going to discuss again the soil genesis process. Here I am straightforward going to discuss the classification of Indian soil. Classification of Indian soil. And Indian Council of Agriculture Research, when you look at ICAR in short,
has classified the Indian soil into 8 types. 8 types. तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 8 टाइप में भारत की मिट्टियों को विभाजित किया. तो आपको यही पढ़ना है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल, और इनके फीचर्स पढ़ने, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका सोर्स क्या है, इनके अंदर कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, कौन से मिनरल अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, किस तरह के क्रॉप के लिए सूटेबल है, किस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती, ठीक है, किस स्टेट्स में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस फिर पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है. So first of all we have to know here, when I'm going to discuss this, ये क्लासिफिकेशन तो करोगे ही, ICAR क्लासिफिकेशन. First of all you should know what is soil in general and little bit about the soil genesis. In the biogeography section I had also discussed the world classification of soil. मैंने जिन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी उनके साथ वर्ल्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दिया, और वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में भी मेजर 2 क्लासिफिकेशन है, CSCS क्लासिफिकेशन और मार्बर्ट्स क्लासिफिकेशन, वो मैंने कर दिया था डिस्कस, ठीक है. तो वर्ल्ड क्लासिफिकेशन से मुझे यहाँ नहीं कुछ, बट क्या है कि कई बार पीटी में क्वेश्चन दोनों से कंपेयर करके पूछ लेता है, तो बाद में उसको समझना भी पड़ेगा. क्या होता है कि अब मुझे बताओ कि सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल? Mixture of rock debris and organic materials. अरे खा के नहीं बैठी है क्या, घर पे है तो थोड़ी आवाज बोलो ऐसी कि सुनाई दे कानों तक. Sir, mixture of rock debris and organic materials. Okay, where it is found, where the mixture of this organic debris and minerals On the is surface present? of Earth, or On the Earth's surface. अच्छा, ऑन द अर्थ सरफेस. मुझे लगा मार्श के बारे में पढ़ रहे हैं या मून के बारे में पढ़ रहे हैं. अरे तो कंप्लीट सेंटेंस लिखनी पड़ेगी. ओवर द क्रस्ट, ओवर द अर्थ, वी नो दैट, द टीचर नो एवरीथिंग, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, so on the outer surface, that is crust, it is a crustal material. Soil is a crustal material, no? Yes, sir. It is a crustal material. अब क्रस्ट जो है अर्थ का, आपको पता है ना, क्रस्ट अर्थ का किससे बना हुआ है? रॉक से बना है. अर्थ का क्रस्ट, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो या ओशनिक क्रस्ट हो, पानी हटा दोगे तो नीचे भी चट्टाने हैं, है ना. सो द सॉइल इज अ क्रिस्टल मटेरियल फॉर्म्ड बाय द रॉक्स. व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व, क्या प्रोसेस हुआ? वेदरिंग. यही हुआ ना, प्रोसेस इन्वॉल्व इज वेदरिंग. वेदरिंग. So we can say that it is a crustal material, or we can say that soil is a weathered product of rock. No, we can also say that soil is a weathered product of rock. Rock का weathering होगा. अब क्वेश्चन है weathering क्या होता है? In situ disintegration. In situ disintegration is known as weathering. All you people know, I think you have gone through NCERT. Those who had missed my class. Okay, in situ disintegration का मतलब क्या है? चट्टान यहीं है और यहीं टूटना शुरू हो गई, यहीं टूटना शुरू हो गई, इसके लिए वर्ड आता है in situ. At the same place the rocks started disintegrating, और टूटने के कोई वजह हो सकते हैं, रॉक टूट गई
टूटने के बाद वहां पर क्या होने लगे, ये रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, ठीक है, क्या बना, सॉइल। बट इस सॉइल के बेस में अभी भी कुछ कॉन्सोलिडेटेड रॉक्स हैं, यहाँ अभी भी रॉक्स हैं, उसे आप क्या कहते हो, बेसल रॉक, पैरेंटल रॉक, आप उसे पैरेंटल रॉक कहते हैं। आप जब हैंडपंप डिग करते हैं, नीचे चट्टाने आती हैं, उसके ऊपर पानी होता है, वही पानी आप अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हो सॉइल के नीचे से। वहाँ इम्परवियस रॉक है, हार्ड रॉक है, उसी रॉक के ऊपर वाटर एक्यूमुलेट है। तो आप डिग करते हैं तो आपको पता लगता है कि नीचे भी रॉक है सॉइल के। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसी से टूट टूट के बना है सॉइल, पहले वो पूरा रॉकी ही था। So when the earth was created, earth is entirely rocky. Then rock was disintegrated and gradually the soil forms. But why the type of soil is different? फिर जब इस चट्टानों से ही बना है तो soil एक ही तरह का होता, बोला चट्टाने भी एक तरह की कहाँ हैं। आपने पढ़ी इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, अलग अलग तरह की चट्टाने हैं, हर चट्टानों में अलग तरह के मिनरल हैं। तो जो डिसइंटीग्रेशन होगा, जब वो चट्टाने टूटेंगी, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, तो उसमें मिनरल भी अलग अलग होंगे, इसलिए सॉइल के कलर अलग होते हैं, उनकी कैपेसिटी वाटर रिटेंशन की अलग होती है, उनमें मिनरल्स का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, उनके पार्टिकल साइज अलग होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेटामॉर्फिक और जो इग्नियस रॉक होते हैं क्रिस्टलाइन रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक क्रिस्टलाइन नहीं होते, है ना। तो क्रिस्टलाइन रॉक को ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं होता, हार्ड रॉक होते हैं, ठीक है, उनके डिसइंटीग्रेशन से अलग टाइप बनेगा। इग्नियस में भी मैंने बताया, जैसे कोई रॉक ग्रेनाइट का बना है, कोई एंडेसाइट है, कोई बसाल्ट है, बसाल्ट वाले रॉक वेदर्ड होंगे, डिसइंटीग्रेट तो अलग टाइप सॉइल बनेगा, ग्रेनाइट एंडेसाइट ब्रेक होगा तो अलग टाइप ऑफ सॉइल बनेगा। तो सॉइल के कॉम्पोजिशन वेरी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सॉइल प्रोडक्ट है रॉक का, रॉक में ही सिमिलैरिटी नहीं। और भी रीजन है सॉइल के डिफरेंट होने के, और भी रीजन है। एक तो रॉक का कॉम्पोजिशन ही अलग है, इसलिए सॉइल भी टूटने से अलग अलग तरह के बनते हैं, लेकिन और भी रीजन है, रीजन क्लाइमेट भी है। किसी रीजन में तुम जाओगे, वहां पे रॉक का डिसइंटीग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज वेरी स्लो। आइस कवर्ड एरिया है, आइस मेल्ट होगा, रॉक एक्सपोज्ड होंगे, तब ना टूटेंगे। अब ये रॉक के ऊपर बर्फ से ढका हुआ है, ये रॉक कहाँ टूटेगा, एक्सपोज्ड होगा तो टूटेगा, या इसके ऊपर ग्लेशियर एक्ट करेंगे तो वेदर्ड होगा। तो किसी वर्ल्ड में कई रीजन ऐसे हैं जहां वेदरिंग प्रोडक्ट स्लो है, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज स्लो, सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो। इन द पोलर रीजन सॉइल दिखाई देता है क्या, टुंड्रा रीजन में बड़े थिन सॉइल होते हैं, वी कॉल्ड इट अजोनल सॉइल। कंप्लीट होराइजन नहीं डेवलप होता, सॉइल में डिग करोगे तो तुम्हें अलग अलग कलर दिखाई देंगे, कुछ कुछ मीटर्स के ऊपर लेयर्स दिखाई देंगे, इन लेयर्स को हम होराइजन कहते हैं, ठीक है ना। हर होराइजन के अलग नेम होते हैं, O1 O2, ओके, A1 A2 A3 B1 B2 B3, सभी के केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं, लेयर्स के सबके कलर अलग अलग होते हैं। मिट्टी को डिग करो गहराई से, मिट्टी अंदर से निकलेगी तो उसमें कलर अलग अलग निकलेगा, लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ जो मिट्टियां ऐसी होती हैं जिनमें ये लेयर काफी डिमार्केटेड और डीप होते हैं और कई लेयर होते हैं, और कुछ मिट्टियां होती हैं बहुत पतली, वहां मिट्टी ज्यादा बनी ही नहीं है, रॉक्स हार्ड हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, टंड्रा रीजन में जाओगे, द सॉइल इज वेरी थिन। तो जब कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल बनेगा, ऐसे लेयर काफी बन जाएंगे, हम इसे जोनल सॉइल कहते हैं। कई जोन बन गया, कई होराइजन बन गए, कई लेयर बन गए, और ऐसा बनने में कई हजार साल लगे, ऐसा नहीं है एक दो दिन में बन गया। इट टेक्स thousands of years to disintegrate the rocks and form such a thick soil having different layers and profiles. लेकिन कुछ रीजन में इतने लेयर्स नहीं डेवलप होते, हम उसे अजोनल सॉइल कहते हैं। The zone is not developed. So there is a zonal classification in the world. I had discussed in my previous lecture of biogeography what is the zonal classification of soil. Okay. Why we call that zonal and why we differentiate?
जोनल, अजोनल एंड इंट्राजोनल। एक ऐसा सॉइल है जिसमें जोनल और अजोनल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब जो मैंने कहा रॉक डिसइंटीग्रेट होते हैं तो दो प्रोसेस से होते हैं, एक फिजिकल जहां केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, मैकेनिकल एक्शन से रॉक टूट जाता है। जैसे बारिश के बूंदे तेज आके गिरी, ठीक है, रॉक ने बारिश को एब्जॉर्व किया, उसके पोर्स होते हैं रॉक में और मिनरल्स डिजॉल्व होते गए, धीरे 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 टूट गए। यह फिजिकल एक्शन है, ठीक है। फिजिकल एक्शन आपने क्या देखा, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। अगर आप देखेंगे फ्रीजिंग एंड थॉइंग में क्या होता है, अगर आप कूल रीजन में जाओगे, रॉक्स में क्रैक्स जहां होते हैं, उन क्रैक्स में जब मॉइस्चर गिरता है, मॉइस्चर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस की साइज जब बड़ी होती है तो वो और दरारे को बड़ा कर देता है, क्रैक्स को और बड़ा करता चला जाता है, रॉक्स टूट जाते हैं। वो फिजिकल एक्शन है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन देयर, नो केमिकल रिएक्शन। चट्टानों पे पौधे उग जाते हैं, जड़ें उनकी तोड़ देती हैं चट्टानों को, वो फिजिकल एक्शन है। वहां कोई वो मैकेनिकल पावर, जड़ों की मैकेनिकल पावर से चट्टानें टूट गई, है ना। सो मैकेनिकल एक्शन, वी कॉल दैट फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। सो देयर आर वेरियस वे ऑफ फिजिकल, ठीक है ना। समर में ड्राई हो गया रॉक, विंटर और फिर रेनी सीजन में सॉइल मॉइस्ट हो गया कॉन्टिन्यूसली, या डे टाइम में धूप पड़ रही है, चट्टानें पूरी गर्म है, रात में वो कूल हो गई, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। जब चीजें चट्टानें गर्म होती हैं एक्सपैंड करती हैं, आपको एक्सपेंशन आपके तोंद की तरह नहीं दिखाई देगा, बट दैट इज एक्सपेंशन, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, ये जो स्ट्रेस क्रिएट होता है चट्टानें टूट जाती हैं। आपके घर के बाहर अगर बड़े बुल्डर्स रखे हुए हैं, कई साल बाद उसमें क्रैक्स अपने आप डेवलप हो जाएगा, कैसे, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, heating and cooling. That is physical action. So weathering takes place through physical action. Dry, wet, cooling, warming, okay, penetration of the roots, okay, all these are the factors. और कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं, जैसे बारिश हुई, पोर में गया, पोर के कुछ मिनरल पानी में घुल गए, कुछ, सारे नहीं घुल पाते, वो धीरे धीरे पोर की साइज बड़ा करता गया, बड़ा करता गया, बड़ा करता गया, सडनली रॉक्स के बीच में बड़े बड़े छेद हो गए, फिर रॉक टूटने लगा। दैट इज अ प्रोसेस। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। वाटर ने सॉइल को, मैंने आपको एग्जांपल दिया, या आप देखना एनसीईआरटी, दोज हु हैव कास्ट टोपोग्राफी इन अ लाइमस्टोन रीजन, जहां ऐसे माउंटेन तुम्हें दिखाई देंगे जो लाइमस्टोन के बने हैं, वहां जाके देखो पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े छेद हैं, ठीक है ना, और वहां से पानी अंदर जाता है और पहाड़ को कट करके वाटरफॉल नजर आएंगे तुम्हें। क्यों, लाइमस्टोन रॉक्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड, इजीली डिसॉल्व। तो व्हाट यू फाइंड, सिंक होल, शैलो होल, उबुला, डोलाइन, बहुत सारे लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, अंदर पहाड़ों के केव दिखाई देगा। उत्तराखंड में जाके देखो, हिमाचल में ऐसे कई केव्स हैं जो लाइमस्टोन रॉक्स के बने हैं। इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यू कैन ऑल्सो गेट सच केव, ऊपर में पूरा इंटैक्ट पहाड़ है, अंदर में केव है। क्यों, कहीं पहाड़ से पानी रिश्ता हुआ, क्या बना दिया, एक होल बना दिया, वहां से वाटर आया, नीचे नीचे तुम केव में जाओगे, नीचे पानी बहता हुआ नजर आएगा, अंदर में स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। तो ऐसा उस चट्टानों को किसने तोड़ा, पानी ने तोड़ा। क्यों, क्योंकि वहां की रॉक जो है इजिली डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल एंड फिजिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ वेदरिंग, एक तो केमिकल रिएक्शन होते हैं और दूसरा क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। सो व्हाट इज द रॉक, रॉक इज द व्हाट, unconsolidated disintegrating weather product of the rocks which is present on the earth crust, जो crust के ऊपर मिलता है, ठीक है। So we have to understand, when you are going to learn about the soil, you have to understand where the soil is present and how the soil forms, what are the processes which involve. अब ये तो सब चट्टानें टूट तो गई, टूट गई,
और बना दी। पर ये जो मैंने कहा कि कैसे डिटरमाइन होता है कि कौन से टाइप, ये क्लासिफिकेशन कैसे किया होगा जियोलॉजिस्ट पेडोलॉजिस्ट ने। अभी सॉइल ये जो बन रहा होता है इसमें और भी साथ साथ प्रोसेसेस चल रही होती है। अब सॉइल किस क्लाइमेट में है, मान लो गर्म एरिया में, तो सॉइल में ना कैपिलराइजेशन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होता है। गर्मी में सॉइल के मॉइस्चर जो है वो ऊपर उड़ेंगे, इवेपोरेट होके ऊपर उड़ेंगे, तो नीचे से बहुत सारे सॉल्ट और मिनरल को ऊपर ले आएंगे। जब ऊपर ले आएंगे सॉल्ट और मिनरल को, जो नीचे पड़े हुए थे वो मिनरल पानी जब ऊपर आएगा वॉश बन के वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। और ऊपर आने के बाद ऊपर के लेयर में जाकर जमा होने लगते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मिनरल भी होता है। कहाँ हुआ? ड्राई एरिया में। ड्राई एरिया में जाओ, देखो शलाइन और अल्कलाइन सॉइल कैसे बने। मैं राजस्थान पढ़ा रहा था तो मैंने कहा ऊपर में लेक बने हैं, तो वहां सॉल्ट आ गया ऊपर। सॉल्ट कैसे? पंजाब हरियाणा में सॉल्ट कैसे आ गया? एक्सेसिव इरिगेशन से। तुमने पानी दिया, फिर पानी वो वाष्प बन के उड़ा गर्मी में, तो नीचे से सॉल्ट ऊपर आ गए। सॉल्ट ऊपर आके ऊपर में क्रस्ट बना दिया सॉल्ट का, सॉइल के क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। तो ये भी प्रोसेस होगा, डिपेंड ऑन क्लाइमेट। जिस एरिया में ज्यादा वर्षा होती है उस एरिया में वाटर क्या करता है, ऊपर वाले लेयर से मिनरल को डिसॉल्व करके नीचे ले चला जाता है। कलर बदल जाएगा सॉइल का कुछ सालों के बाद, लगातार वर्षा होगी तो। दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। सो ह्यूमिड एरिया में लीचिंग होती है, पानी डिसॉल्व करके मिनरल नीचे ले जा रहा है, और ड्राई एरिया में कैपिलराइजेशन होता है, नीचे से ऊपर आ रहे हैं मिनरल। तो ये मूवमेंट भी होता है सॉइल के अंदर, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। दैट्स व्हाई यू गेट different color of soil, different type of soil, different mineral composition within soil, and the soil having different capacity. Okay. अब सैंड को देखो, हाथ में लेकर ऐसे बालू उठाओ और छोड़ो, आपके हाथ ऐसे झाड़ दो, सारी हट जाएगी। लेकिन वही चिकनी मिट्टी उठा लो, चिपक जाएगी। आप कितना भी ऐसे करें निकलेगी नहीं हाथ से। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कोर्स। अभी द ग्रेन साइज ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट, पार्टिकल साइज अलग अलग होती हैं, उससे भी डिटरमाइन होता है। पानी बालू वाले मिट्टी में पानी डालते जाओ वो नीचे चलती जाएगी, क्लेई सॉइल में थोड़ा पानी दो सारे सॉइल चिपक जाएंगे। क्यों? तो वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी अलग अलग मिट्टी की अलग अलग है, डिपेंड करता है उसके ग्रेन साइजेस कितने बड़े हैं। सो व्हाट वी हैव टू लर्न हियर, that's why in biogeography I had invested energy, I had given 1.5 week on the soil, so you can understand the basics.